Today we are going to start with the Prezi, the presentation tools. And this is my blog, kathinirmal.wordpress.com. Here we have the presentation using Prezi. So first question is what why we should choose Prezi. So one very good example of Prezi presentation is freely available on the YouTube. This is 3 minutes of video. So we'll start with this video. Then I will show you some of the presentation that I have prepared, and then I will guide you okay, how you can explore to the Prezi. In 1 hour we cannot. I'm not giving a surety that I will cover each and everything, but I'm sure that I can give you the good introduction about the Prezi, and I can make you aware about the which facilities are given by the Prezi that you can incorporate in your presentations. So we'll start with the first question: why one should go with the Prezi? So I'm starting with the video. Uh, can you hear the sound? Hand in hand Yes, ma'am. on the warm sand, we are walking barefoot and free. In your eyes, I see blue skies reflection, and everything is blue and blurry. Kissed by sun, loved by winds. We're so happy at this lovely place. No sorries, no worries. Let it always be a sunny day. Whoa, just for you and me. Whoa, a sunny day. Whoa, let it always be. Whoa, a sunny day. Your embrace and your smiling face are making every moment miraculous. I believe as long as we live, our love will be deep and true and cloudless. Take my heart, take my soul. All I need is you to behold. No sorries, no worries. Let it always be a sunny day. Whoa, just for you and me. Whoa, a sunny day. Whoa, let it always be. Whoa, a sunny day. Take my heart, take my soul. All I need is you to behold. No sorries, no worries. Let it always be a sunny day. Whoa, just for you and me. Whoa, a sunny day. Whoa, let it always be. Let it always be a sunny day. Whoa, just for you and me. Whoa, a Okay. sunny day. So I think you have clearly seen the video. So what we can realize from it that when we have too much information or our diagrams is too large that can fit into a screen, so we divided things. And main part in the praise is what you can make your audience very lively with your sessions.
अगर देखो, अगर कोई एक एक के बाद एक प्रेजेंटेशन आता है, एक के बाद दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, तो वी ऑल गेट स्लीपी, दैट इज फैक्ट, कि हम लोग वही वही इमोशंस आते हैं ना, तो अवर आईज आर गेट यूज टू इट एंड समटाइम्स वी गेट द स्लीपी। तो इंस्टेड ऑफ दैट, ये जो है ना, दिस यू कैन मेक योर ओन स्टोरीज, तुम्हारी खुद की स्टोरीज बता सकते हो, सो दैट एवरी टाइम व्हेन द न्यू स्लाइड विल कम, योर audience will surprise now what the next turn will be, where we are going the next time. So this is the beauty of this, and this we can you using what, Prezi. So without much elaborating, I'm going to start with the Prezi. So it is very easy, you can create your account on your Prezi, prezi.com, this is the account, and prezi.com is completely online. So we can say that you are going to make the you are going to make the URLs of your videos, and that URL you can share with anyone at any time. And write down, internet is not the issue. Previously, before 5 to 7 years, if it is like so we can say that ki download nahi hota hai, so how we can use it. So everything excuses what at that time before 5 years, but now there is no issue of that. अगर downloading नहीं है, so we have the option कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर downloading नहीं है, so we have the link and we can view the online. So this is the Prezi website. So here you have the many option. You can make the video, you can make the design, you can make the present. Here we have. So we have to choose the Prezi present. Okay. First thing is what, you have to create your account in the Prezi, and after creating account you have to select the Prezi present. Okay. And all your presentations you can show over here. जितने भी presentations मैंने बनाया है, या फिर दैट आई एम वर्किंग ऑन दैट आर आई हैव केप्ट ओवर हियर, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये यहाँ पे हम लोग उसको रखते हैं। ठीक है, एवरी प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड आर हियर। सो दिस इज वन गुड फैक्ट कि वी हैव द रिपोजिटरी ऑफ आर प्रेजेंटेशंस, देयर इज नो नीड टू गो फॉर हियर एंड दैट। ओके, सो नाउ तुमने अभी जो प्रेजेंटेशन देखा, दैट इज तुम लोग ऐसे रिलेट कर सकते कि बोली अनप्रोफेशनल था, तो हमने स्टोरी क्रिएट की। सो हाउ वी कैन मेक द प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन? So it is essentially very good tool। मतलब इसे आप कितना भी अच्छा अपना प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो। सी, एक बार मुझे संघवी सर ने चांस दिया था, उन संघवी सर का सेशन था पीजी स्टूडेंट्स के लिए, पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड देन आई हैव मेक द प्रेजेंटेशन फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, सो क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑन द हायर लेवल जहाँ पे उनको प्रेजेंट करना था एज एन एक्सपर्ट ऑफ, सो वी कैन प्रीफर द प्रेजी एट दैट ऑल्सो। सो मैं एक बताती हूँ तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल कि कैसे हम लोगों ने किया था वो। सो दिस इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग का यू कैन टेक द इमेज, ये इमेज था। नाउ see, by visualizing the first page, nobody can realize कि इसका next page क्या होगा, what will be the next page. So when I'm going to write down the next page, this will insert it. Now this, your goal is to have an important company, these are the case studies, this you can do. See, this is very professional one, and you can use the see, now it is going inside, again outside, again I have inside, again I have outside. So this is what eye catching presentations, your audience will take a interest कि अभी next क्या होगा, clear? See, now this is my next slide. So now this is very simple, देखने को बहुत simple लग रही है, but when we are giving the effect, zoom in and zoom out, see, this is how the zoom, this is topic. In case of Prezi, we have two things, topic and subtopic. So this is topic, ठीक है, ये तुम्हारा टॉपिक है, इसके अंदर कोई सब टॉपिक नहीं है। सो दिस इज लाइक दिस, यहाँ पे मेरे पास टॉपिक्स भी एंड सब टॉपिक्स भी है। तो दिस इज सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 3, सब टॉपिक 4, ऐसा तुम्हारा क्या आता है, सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, एंड देन आई हैव द टॉपिक इज व्हाट, तुम्हारे टॉपिक्स यहाँ पे आ रहे हैं। दिस इज क्लियर। इन दिस वे योर प्रेजी विल वर्क, कैसे जूम इन एंड जूम आउट होता है, क्लियर? So this we have prepared for the this is what, these are the security issue. Now if I want to focus on the security issue slide, so what you can do is you can go here and I have the security issues, and this is what, this we can do the animations we can do as a normal. Now data issue, so data issues will become, then I have the performance issues. So this slide, तो उसके performance issues यहाँ पे है, then I have the other issues, तो ये यहाँ पे है। तो दिस इज द एग्जाम्पल दैट हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। अगर तुम्हारे कंटेंट बहुत ज़्यादा है,
So how you can organize? See, in this way you can organize your content. क्लियर? सिंगल सिंगल जो भी इमेजेस है दैट इज हैव दी, वो तुम लोग उसको क्या कर सकते हो, फोकस दे सकते हो। ठीक है, सिंगल इमेज को वी कैन गिव द फोकस। सी, हमने इमेज को फोकस दिया है, सो योर इमेज कैन क्लियरली विजिबल, तुम्हारी इमेज क्या है यहाँ पे विजिबल हो रही है। दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ द पावर पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हाउ वी कैन गिव द जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट्स। Clear? This is the one example that how you can make the crazy. Likewise, I have many example. If we are going to see the comp IT department का एक video था, if I'm going to show you, see this is agenda, then see student development plan. Nothing is visible at the first. सब कहाँ पे आ रहा है, बाद बाद में आ रहा है। See, these are the interactive graphs. Then we can have the admissions process. Then we have the other admission task and everything we have. फिर हमारे यहाँ पे क्या है, टचिंग लर्निंग क्या प्रैक्टिस है, देन वी कैन गिव फोकस टू दिस। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट इज व्हाट स्किल सेट्स, एवरीथिंग वी कैन फोकस। तो ऐसे तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो। सो क्या लगता है, प्रेज इज इंटरेस्टिंग टूल, यस और नो? तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या प्रेजी? Yes, ma'am. ओके, सॉरी। अगर दो या तीन स्टूडेंट्स ने या फिर एक दो ग्रुप ने भी तुम्हारे प्रेजी से प्रेजेंटेशन बनाए ना, तो दैट विल बी द ट्रू फीडबैक ऑफ माय सेशन, यू हैव सिलेक्टेड द प्रेजी एज अ प्रेजेंटेशन टूल फॉर योर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन कि हम लोग कैसे उसका प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन। यहाँ पे प्रेजेंट, तो यहाँ पे एक आता है दो थिंग है। तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर मुझे प्रेजे बनाना है तो हियर वी हैव create from template and create from scratch। ठीक है, एज अ बिगनर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेम्पलेट। स्क्रैच मतलब क्या, मेरे पास अगर कोई ये फिक्स है, जैसे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, वो फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर छोटे छोटे मैंने असाइन किए। तो जब तुम्हारे दिमाग में व्हेन योर टॉपिक इज फिक्स in your mind, you have decided your topics and you want to elaborate this topic with the help of different diagrams and different methods। सो अगर तुम्हारी थीम फिक्स है तो यू कैन गो फॉर द स्क्रैच, अगर वो वहाँ पे है। बट इनिशियली आई प्रिफर यू गो फॉर द टेम्पलेट्स। वंस यू आर फेमिलियर विद द टेम्पलेट्स, या दो और तीन प्रेजेंटेशन तुम लोग टेम्पलेट से बनाते हो, एंड वन यू गेट द गुड हैंड्स ऑन योर प्रेजी, देन यू कैन गो फॉर द स्क्रैच। स्क्रैच मतलब क्या, मैं तुमको एक आईओटी का प्रेजेंटेशन बताती हूँ। सी, आईओटी मतलब क्या, रोबोट्स रहते हैं। ठीक है, सो एक रोबोट जैसा प्रेजेंटेशन बनाया था, उसके हैंड्स है, उसका डिवाइस है, उसका ये है। सो दिस इज व्हाट, एक ऐसा प्रेजेंटेशन हमने बनाया था। ये देखो ये, ठीक है, दिस इज व्हाट कि तुम्हारे दिमाग, ये हमने स्क्रैच से बनाया हुआ है। दिस इज दी स्क्रैच। स्क्रैच से क्या हो रहा है, यू हैव दी कैनवास विथ यू। जैसे ड्राइंग में कैनवास रहता है, वो कैनवास में तुम लोग कहीं पे भी ड्राइंग करते हो। सो जब मैं स्क्रैच से बनाती हूँ ना, एट दैट टाइम आई कैन हैव एज मैनी, सी आई हैव द प्योर कैनवास विथ मी। मैं वो कैनवास में कहीं पे भी मेरा क्या कर सकती हूँ, ये मैंने आईओटी का एक इमेज लिया था, वो इमेज मैंने डाल दिया, और जहां मुझे लगा मैंने वहां वहां पे मेरी इमेज, वहां वहां पे मैंने क्या किया, कंटेंट्स डाल दिए। तो दिस इज द स्क्रैच। यहाँ पे मैंने कोई टेम्पलेट नहीं यूज किया था। बट एज अ स्टूडेंट्स, और व्हेन वी आर गोइंग टू फर्स्ट टाइम डेवलप द प्रेजी, वी हैव टू गो विथ व्हाट, क्रिएट फ्रॉम द टेम्पलेट। ओके, वो टेम्पलेट के अंदर फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटीज है। ओके, सो टेम्पलेट के अंदर हम लोग एक टेम्पलेट लेते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू टेक द टेम्पलेट। Okay, you tell me which using which template you want to work. See, this many templates we have. Anybody can, from you can tell me which template you like. We are going to start with it. Should we start with this training? यहाँ से start करें, ट्रेनिंग कोर्स से।
ठीक है, Yes, ma'am. so we are going to start with this training demo. आई विल गिव ट्रेनिंग डेमो, मैंने इसको नाम दे दिया ट्रेनिंग डेमो। ठीक है, हियर वी आर टू ऑप्शन, पीपल आई शेयर इट विथ एन एनी वन। सो प्रेजी के जितने भी फीचर्स है ना दैट आर नॉट फ्री। 7 days ट्रायल तुम्हें मिलता है अगर तुम्हें उसको डाउनलोड करना है तो, या तो फिर तुम्हें किसी के तुम्हें उसको प्राइवेट रखना है तो। अदरवाइज जो भी प्रेजी है ना, दैट इज वॉट, अगर मेरा प्रेजी है ना तो दैट कैन बी व्यू बाय एनी वन ऑन द वेब। ठीक है, जब तुम लोग ऐसा यूज करोगे पीपल आई शेयर इट विथ, so this is the plan of what your paid version, but we don't have any option. If anybody can on the web can see our presentation, we have don't issue, so we will select anyone on the web, then we are going to continue. ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने एक टेम्पलेट सिलेक्ट किया। आफ्टर सिलेक्टिंग द टेम्पलेट व्हाट वी हैव डन, वी हैव select the option anyone with the web, so this is your thing। ठीक है, so one beautiful video will come that will take care you what are the Prezi present concept, which concept they have used in your Prezi. Let's take a quick look at how Prezi works. Imagine presenting about transportation in a city. We start with the main ideas, then dive in to reveal the details. Jump to any part of your presentation anytime. Launch into your subtopics to get more specific and elevate your story. Let's get ready for takeoff. 3, 2, 1. Okay, this are the how we are going to do is, सी अभी मैं यहाँ पे क्या क्या उसके एलिमेंट्स है पहले वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजी में एलिमेंट्स क्या क्या है। तो एक जो फर्स्ट पार्ट रहता है ना प्रेजी, दैट इज ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब क्या, जो हमें फर्स्ट स्लाइड चाहिए, ठीक है, जो हमें इनिशियल फर्स्ट स्लाइड चाहिए, दैट फ्रॉम वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वहाँ से ही हम लोग एंड करने वाले हैं। सो वी नीड द फर्स्ट स्लाइड दैट इज ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू के फर्स्ट स्लाइड के बाद सेकेंड स्लाइड हमें क्या क्या चाहिए, now we have the topics and subtopics। ठीक है, what is elements, deep dive, what's next, this all are what your topics। ये topics को हमें elaborate करने के लिए 2 to 7, मतलब what is के अंदर 2 to 7 है वो क्या है, तुम्हारे सब टॉपिक्स है। ठीक है, तुम्हारे अंदर क्या है, सब टॉपिक्स है। उसके बाद 8 to 15, 8 to 15 क्या है, वो इसके सब टॉपिक्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू रन इट, तो तुम्हारा टॉपिक रन हुआ। ठीक है, पहला सब टॉपिक रन हुआ, फिर व्हाट इज, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या लिखा, देखो तुम डेफिनेशन दे सकते हो, डेफिनेशन के बाद उसके लेसन प्लान दे सकते हो। क्लियर, सो दिस इज व्हाट इज। ठीक है, सो हम लोग अगर अभी इसको एडिट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गेटिंग स्टार्टेड विथ प्रेजी। इट्स वेरी इजी, मैं तुम्हारे सामने ही बना रही हूँ, देखो गेटिंग स्टार्टेड विथ प्रेजी। नॉर्मल तुम्हें एडिट करते जाना है, इफ यू वांट के तुम उसको थोड़ा कर सकते हो, यू कैन केपेबल। if we want that तुमको उसको we have the increase size, decrease size, every option is very easy। नॉर्मल जैसे करते हो ना वैसा ही है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट इज के अंदर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट आई नीड की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन लिखी मैंने यहाँ पे प्रेजी की, फिर लेसन प्लान चाहिए। नाउ आई नीड व्हाट, लेसन प्लान के बाद 6 के बाद आई नीड वन मोर सब टॉपिक, मतलब ये 3 टॉपिक मेरे लिए सफिशियंट नहीं है, 1 2, स्टिल आई नीड वन। यहाँ पे क्या है, एक दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, नाउ आई वांट टू ऐड वन मोर टॉपिक, so you can add topic, you can click on the sub topic, your topic will be created। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी ये जो तुम्हारा टॉपिक यहाँ पे क्रिएट हो गया वो किसके अंदर आया है, व्हाट इज के अंदर ही आया हुआ है। सी यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, देखो व्हाट इज के अंदर आया हुआ है। सो दिस इज व्हाट जो हमने डिफाइन किया हुआ है वो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो हमने एक्सप्लोर का एक किया, सो ऑटोमेटिकली ये जो एक्सप्लोर है दिस विल बी एडेड टू योर पाथ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से रन करते हैं तो वी हैव दी, सी पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद
दिस वन, और उसके बाद क्या है हमारा एक्सप्लोर. क्लियर? So these are the what topics and subtopics. So I think so topics and subtopics are clear. Now this is what, ये तुम्हारा ये सब टॉपिक था, ये तुमने एक्सप्लेन कर दिया. अभी वापस एलिमेंट्स वाला आया. ठीक है, जब मैंने एलिमेंट्स ओपन किया तो यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट, देन आई हैव सेकेंड, देन आई हैव थर्ड. क्लियर? सो ये टॉपिक्स आ गए. लाइकवाइज क्या होगा, लाइकवाइज आई हैव फॉर एवरी पर्टिकुलर डीप ड्राइव, व्हाट नेक्स्ट, एवरीथिंग. ठीक है, अभी सपोज मैं व्हाट नेक्स्ट में जाती हूँ. ठीक है, मैंने इसको रन किया. अभी आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द नेक्स्ट सेशन मोर. अभी देखो ये क्या है तुम्हारे पास, नेक्स्ट सेशन में मोर है. अभी यहाँ पे क्या है, एक देखो तुम्हारे पास ये है, मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे एलो ऐसा फोकस देना है. कोई भी चीज को मुझे क्या करना है, फोकस देना है, वो सामने आना चाहिए. अभी कैसे हो रहा है देखो, तुम लोग उसको थोड़ा विजुलाइज करने का ट्राई करो. जब मैंने इसको फोकस दिया तो क्या हुआ, पहले व्हाट नेक्स्ट आया. ठीक है, व्हाट नेक्स्ट आया, फिर योर प्रोजेक्ट आया. ठीक है, योर प्रोजेक्ट के बाद क्या आता है, नेक्स्ट सेशन आता है. ना नेक्स्ट सेशन के बाद तुम्हारी ये जो नोट है ना, ये विजुअलाइज होके सामने नहीं आ रही, मतलब इसको हमने फोकस नहीं दिया है. तो इसको फोकस देना होगा ना, तो तुम लोग राइट क्लिक करो. ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है ऐड एनिमेशन. क्या आता है, ऐड एनिमेशन. तुम्हें क्या करना है, उतने उतने पार्ट को जूम 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 एरिया करवाना है, तो तुम उसको जूम एरिया बोलो. और ये जो जूम एरिया है ना, उसको तुम क्या करो, कितना पार्ट तुम्हें जूम करवाना है. अगर मुझे इतना पार्ट जूम करवाना है जहाँ पे ये नोट प्रेजेंट है, तो व्हाट आई विल डू, उसको एडजस्ट करके मैं यहाँ पे जूम करवा दूंगी. ठीक है, इतना पार्ट जूम किया. अभी तुम इसको विजुलाइज करो, तो अभी क्या होगा, सी, आया समझ में. मतलब क्या हुआ, उसने पहले लेसन प्लान लिया, देखो नेक्स्ट सेशन लिया, व्हाट नेक्स्ट में हम लोग थे. ठीक है, हमारा योर प्रोजेक्ट आया, योर प्रोजेक्ट के बाद क्या आया, नेक्स्ट सेशन आया, और नेक्स्ट सेशन के बाद ये जूम हो के आया. क्लियर? तो दिस इज व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू गिव द जूमिंग इफेक्ट. सो ऐसे हम लोग उसको कोई भी इफेक्ट को अगर हमें जूम देना है तो क्या करना है, मैं अगेन एक बार बताती हूँ. अगर मुझे इसको जूम करना है, तो जूम करने के लिए मैंने क्या किया, जूम करने के लिए मैंने यहाँ पे आई हैव व्हाट आई हैव गिवन. अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ, ओ वी आर रनिंग विद द टाइम. ओके ठीक है. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उसको क्लिक किया. अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसको यहाँ पे मुझे करना है ऐड एनिमेशन. ठीक है, ऐड एनिमेशन जाओगे, जूम एरिया आएगा. जूम एरिया को क्या करना है, तुम्हें एडजस्ट करना है, जितना तुमने जूम करवाना है तुमने क्या किया, उतना जूम करवा दिया. क्लियर? इन दिस वे वी हैव द फेड इन एंड फेड आउट. क्लियर? सो दिस इज व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है. Prezi में वी हैव द इनबिल्ट लेआउट्स. इनबिल्ट लेआउट्स मतलब क्या, एक मिनट में बताती हूँ. दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इनबिल्ट लेआउट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन क्रिएट योर ओन वे. जैसे जैसे तुमको समझ में आएगा तुम लोग कर सकते हो. बस प्रैक्टिस की जरूरत है प्रेजी में, वी नीड व्हाट, प्रैक्टिस. सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन है. डेफिनेशन में मुझे क्या इंसर्ट करवाना है, आई वांट टू इंसर्ट लेआउट. ठीक है, सो लेआउट्स कौन कौन से अवेलेबल है यहाँ पे. ठीक है, दिस टाइप ऑफ लेआउट्स वी हैव. सी, तुम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा. ऐसा कुछ लेआउट चाहिए तो तुम यू हैव द टॉपिक लेआउट. ठीक है, जहाँ पे तुम अपनी डेफिनेशन लिख सकते हो. सी, अगर मैंने इसको लिया कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है और एक फोटो क्लिक करना है. सो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे मैंने फोटो रखा और यहाँ पे वो डेफिनेशन आ गया, एंड यू कैन प्लेस योर डेफिनेशन ओवर हियर. तो दिस इज द रेडीमेड थिंग. ये तुम लोग क्या कर सकते हो, डेफिनेशन में यहाँ पे यूज कर सकते हो. जब इसको रन करोगे, सीधे, ठीक है. अभी मुझे क्या करना है, जब मैंने डेफिनेशन किया तब मुझे क्या करना है, इसको एनिमेशन करना है. तो ऐड एनिमेशन, वापस क्या करोगे, जूम एरिया. कितना एनिमेशन करना है, डेफिनेशन लिखा कि क्या जूम होना चाहिए मेरा, इतना इतना पार्ट जूम होना चाहिए. तो ये क्या होगा, इतना इतना जहाँ पार्ट पे मैंने लिखा हुआ है
दैट विल बी जूम, तो मैंने ये जूम कर दिया। आया समझ में? तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लेआउट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे लेआउट्स नहीं यूज करने, सपोज आई डोंट वांट टू यूज द लेआउट्स, और मुझे कोई इनबिल्ट यहाँ पे क्या यूज करना है, कोई ऐसी डायग्राम्स यूज करनी है, या तो फिर ये देखो इंसर्ट में जाओ, तो वी हैव दी माई लाइब्रेरी। माई लाइब्रेरी से तुम लोग क्या करते हो, यहाँ पे तुमको जो चाहिए वो तुम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। स्टोरी ब्लॉक्स, स्टोरी ब्लॉक्स मतलब क्या, मुझे ऐसा टाइमलाइन चाहिए या तो फिर ऐसा लिस्ट चाहिए। अगर टाइमलाइन चाहिए तो पर्टिकुलर प्रेजेंट पे पर्टिकुलर टाइमलाइन आ रही है, ऐसी टाइमलाइन चाहिए। तो टाइमलाइन में बहुत ऑप्शन है, तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे टाइमलाइन तुम लोग इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी जब तुम लोग इसको व्यू करोगे, सी यहाँ पे टाइमलाइन आ जाएगी, यहाँ पे क्या हो गया, टाइमलाइन आ गई। एंड दैट टाइमलाइन व्हाट यू कैन ऐड इन द एनिमेशंस, उसके अलग अलग एनिमेशन करो, और वो तुम्हारी टाइमलाइन, देखो ये टाइमलाइन थी। ठीक है, अब ये टाइमलाइन को एलोबरेट करना है, तो व्हाट आई वांट टू डू इज इवेंट वन, ये इवेंट वन है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसको वापस एनिमेशन देना है। तो व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे क्लिक करो, उसको क्या करो, ऐड एनिमेशन करो। एड एनिमेशन में तुम लोग क्या कर सकते हो, फेड इन भी कर सकते हो। फेड इन मतलब क्या, वो एक बार प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फेड इन फेड आउट भी इफेक्ट दे सकते हो, जूम इन जूम आउट भी इफेक्ट दे सकते हो, डिपेंड ऑन व्हाट योर सिचुएशन। तुम लोग वहां पे क्या कर सकते हो, तुम्हारी इफेक्ट दे सकते हो। तो ऐसे टाइमलाइंस ऐड कर सकते हो। टाइमलाइंस में मैंने क्या किया, अगर जूम एरिया किया, कितना एरिया तुम्हें जूम करना है, तो फर्स्ट इवेंट उतना, तो मैंने फर्स्ट इवेंट उतना, इतना एरिया मैंने क्या किया उसको, सी इतना एरिया मैंने क्या किया, इंसर्ट किया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी चलता है। फिर तुम लोग क्या करो, इसको उठाओ, यहाँ रख दो। ठीक है, कंट्रोल वी, तो ये क्या करेगा, इवेंट्स तुम्हारी प्रेजेंट कर देगा। नाउ इफ वी आर गोइंग टू रन इट, इवेंट वन, देन इवेंट टू, ऐसा क्या होगा, वो इवेंट के हिसाब से क्या करेगा, वो उसको यहाँ पे ए करेगा। दिस इज क्लियर, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी। ये बॉक्स प्रिंट हुआ, ये जो बॉक्स प्रिंट हुआ उसको मुझे वहां पे लेके जाना है, तो ये जो बॉक्स प्रिंट हुआ उसको मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, दूसरा जो बॉक्स प्रिंट होगा उसको मैं क्या करूंगी, यहाँ से यूजिंग एरो कीज, एरो कीज से भी तुम क्या कर सकते हो, ये ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, उसके पाथ को सेट कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। अभी तुम इसको रन करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, सी इवेंट वन आ गया, देन वापस टाइमलाइन, इवेंट टू आ गया, देन इवेंट थ्री आ गया। इन दिस वे वी कैन डू दी टाइमलाइंस। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उसको बोलते हैं स्टोरी ब्लॉक्स। तो तुम यहाँ से क्या करते हो, स्टोरी ब्लॉक्स भी ले सकते हो। सी हाउ मेनी स्टोरी ब्लॉक्स वी हैव, इतनी सारी स्टोरी ब्लॉक्स है, तुम लोग कोई भी स्टोरी ब्लॉक ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास, टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब क्या, टेक्स्ट बॉक्स। अगर तुम्हें इमेज इंसर्ट करनी है तो तुम लोग यहाँ से सर्च भी कर सकते हो इमेज। अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कंप्यूटर की इमेज सर्च करनी है, तो यू कैन सर्च दी कंप्यूटर, यहाँ से सर्च भी होता है, और जो सर्च होगा वो तुम लोग ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है इसलिए वो टाइम लग रहा है। ठीक है, सो ऐसे तुम लोग कंप्यूटर की इमेज को भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आई हैव इज व्हाट, जो फ्री इमेजेस है वो कर सकते हो, तुम्हारी खुद की कोई इमेज है तो उसको अपलोड कर सकते हो। तो ये सब इमेज में है। इफ आई वांट टू मेक एनी आइकॉन्स, ऐसे आइकॉन्स रहते हैं ना छोटे छोटे, अगर मुझे ऐसा करना है कि राइट का आइकॉन, 3 2 1, प्लेट का आइकॉन, दिस आर द आइकॉन्स दैट वी हैव द रेडीमेड। ठीक है, देन वी हैव द एनिमेशन। एनिमेशन हमने देखा, जूम इन जूम आउट। कोई पावर पॉइंट की रेडीमेड फाइल यू कैन इम्पोर्ट ओवर हियर, कोई रेडीमेड फाइल भी इम्पोर्ट कर सकते हो। शेप्स, वी हैव नंबर ऑफ शेप्स वी कैन इंसर्ट। एरो एंड लाइन्स, arrow and lines we have, we can insert pdfs also, then we can insert the audio chart. ठीक है, now chart is the very good thing। यहाँ पे चार्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो मेरे तुम प्रेजेंटेशन में जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो मैंने एक वीडियो दिया है कि तुम लोग चार्ट्स कैसे यूज करोगे। तो मैं एक मिनट में बता देती हूँ कि चार्ट और जो ग्राफिक्स है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका मैंने वीडियो मेरे ब्लॉग पे रखा हुआ है, सो यू कैन एनी टाइम रेफर, जो जो चार्ट जिनको यूज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स भी है, एंड वो टेम्पलेट्स को तुम लोग कैसे ऐड करोगे उसका वीडियो भी है। ओके,
वन सेकेंड. See, this is something. ठीक है, ये देखो ये चार्ट है. ठीक है, चार्ट में मुझे क्या करना है, डेटा भी मुझे चेंज करना है ना. यू कैन चेंज द डेटा. अभी क्या है, हमारे पास कोविड के केसेस है, तो मैंने क्या लिखा, डे 1. उसके बाद मैंने लिखा डे 2. वैसा ही मैंने क्या लिखा, डे 3. तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डे 3, डे 4, ऐसे मैंने 5-6 दिन के क्या लिख दिए मैंने यहाँ पे, केसेस लिख दिए. ठीक है, सपोज वी हैव 5,000, 11,000, एवरीथिंग. एंड नाउ यू कैन सी, अभी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो. सो सी, हियर वी हैव द चार्ट. ये चार्ट रेडी हो जाता है. एंड ये चार्ट को जब हम लोग शेयर करते हैं ना, तो शेयर करने के टाइम क्या होती है, एक लिंक आती है. तो ये लिंक वी आर गोइंग टू कॉपी, और ये लिंक को हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट करेंगे. सो ये इवन तुम्हारा जो प्रेजी है ना, उसको भी हम ऐसे ही शेयर करेंगे. शेयर पे क्लिक करोगे, देखो, देखा क्या तुमने, वो कैसा आता है, ऐसा इंटरेक्टिवली आता है, एक साथ नहीं आता है. वो ऐसा इंटरेक्टिवली आता है. आया समझ में. सो दिस टाइप ऑफ चार्ट वी कैन बिल्ड, कि वो रन टाइम में चार्ट बिल्ड हो रहे हैं. ठीक है, और अगर मुझे प्रेजी को शेयर करना है, तो वी हैव दी ऑप्शन शेयर. किसी के साथ शेयर करना है तो व्यू लिंक आती है. सो व्यू लिंक पे क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू लिंक. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कुछ भी नाम दिया, सपोज ABC नाम. एंड दिस इज व्हाट लिंक विल बी क्रिएटेड. नाउ दिस लिंक यू कैन शेयर विथ एनीवन. और ये लिंक में क्या होगा, तुम्हारा पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो हमने बनाया. This is clear. So I have tried to cover all the topics. If you have any questions, any doubt, because we have only 1 minute remaining to our presentation. Ma'am, I have completed from my side. I have tried to give. If you have any doubt from your side, you can ask me at any time. Yes, ma'am. Thank you so much for your effective presentation. I would like students you try on your own to create the presentations. And at any time, if you want, you can contact Kathy, ma'am. She is working in our department itself. So anytime you can ask her for the same. She will surely help you out. And all the best for making the presentations.